Good morning, dear students. Today we have start chapter number 11, thermal properties of matter. First topic is what is different between heat and temperature. So we know that the experience of heat and temperature, that temperature of hot body is more and temperature of cold body is less. Therefore, the temperature of boiling water is greater than ice. Temperature is a measure of hotness of the body and heat depends on amount of substance. For example, heat in water in bucket at room temperature is less than heat is boiling water in the glass. Next topic is linear expansion. What is the use of thermometer? Explain which properties of liquid is used with temperature to measure in it thermometer and how thermometer represent it. A measurement of temperature is obtained using a thermometer, and thermometers are calibrated so that the numerical value may be assigned to a given temperature, and the unit of temperature Celsius, degree and Fahrenheit and Kelvin. Mercury and alcohol are the liquid used in the most liquid in glass thermometer. For the definitions of any standard scale, two fixed reference points are needed. The ice point and the steam point of water are two covalent fixed points are known as a freezing point and boiling point. तो हम freezing point ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point ले रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस. For ice temperature, for ice and steam point have the value 32 Fahrenheit and 212 Fahrenheit. उसका इक्वेशन आपको पता है TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32 डिग्री. 9/5 TC प्लस 32. सपोज 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आप 0 डिग्री सेल्सियस रखो तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा. तो आपको आंसर मिलेगा 32. तो आंसर इज 32 फ़ारेनहाइट. अगर आप आइस टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो फॉर स्टीम पॉइंट यहाँ पे आपको रखना है 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 करो तो आपको मिलेगा 212 फ़ारेनहाइट. तो ये हुआ स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के लिए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और सेल्सियस में. ये उसका फॉर्मूला है TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32. नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर एक्सपांशन. पहले बॉयज लॉ देख लेते हैं. व्हाट इज बॉयज लॉ? When temperature is held constant, the pressure and volume of quantity of gas are related as PV is equal to constant. Means यहाँ पे 3 physical quantity है P, V and T. P for pressure, V for volume and T for temperature. और आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV is equals to न्यू RD. तो फर्स्ट केस के अंदर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है. In Boyle's law, temperature remains constant and pressure and volume are inversely proportional to. वॉल्यूम प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो P proportional to 1/V means PV is equal to constant. Second is Charles law. When the pressure is held constant, Charles law में प्रेशर कांस्टेंट होगा and the volume of quantity of gas is related to temperature as V/T remains constant. यानी in this case for Charles law pressure remains constant and volume proportional to temperature. If temperature increased then volume becomes increased.
ये सब लो डेंसिटी गैस के लिए पॉसिबल है. लो डेंसिटी गैसेस ओबेइंग दिस लॉ विच मे कंबाइन इनटू अ सिंगल रिलेशनशिप. और वैसे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इज नॉट पॉसिबल, बट जो भी गैस लो डेंसिटी वाले गैस है उसको हम आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं. तो आइडियल गैस इक्वेशन होगा पी वी इज इक्वल टू न्यू आर टी. पी वी इज इक्वल टू न्यू आर टी, वेयर व्हाट इज न्यू? न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन द सैंपल ऑफ गैस एंड आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314. 8.314 जूल पर मोल केल्विन. जूल पर मोल केल्विन. तो इसका अगर आप डायमेंशंस पूछा जाए, आर का डायमेंशन, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L2 T-2 K-1. गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2 K-1. The relationship allows a gas to be used to measure temperature in a constant volume. So P depends on T. इसको हम गैल्यूसेक लॉ बोलते हैं, चार्ल्स गैल्यूसेक लॉ. नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे 3 लॉज आपको याद रखना है, बॉयज लॉ, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक. नेक्स्ट, सेल्सियस डिग्री, उसका फॉर्मूला आपको पता है, टी सी इज इक्वल टू टी माइनस 273.15. मीन्स टी के इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273. फ़ारेनहाइट के अंदर 9/5 T C प्लस 32, वो आपको पता है. फिर से वही वैल्यू आई. स्टीम पॉइंट, फॉर स्टीम पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, 1 प्रिंटिंग नहीं हुआ है. तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273.15 ऐड करो तो केल्विन में आंसर मिलेगा 373.15. फ़ारेनहाइट में मिलेगा 212.00 फ़ारेनहाइट. फॉर आइस डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन 273.15 एंड फ़ारेनहाइट 32. For absolute zero temperature to 0 Kelvin, absolute zero temperature 0 Kelvin, उसको डिग्रीज में सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो -273.15 एंड इन फ़ारेनहाइट -459.69. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर सॉलिड. अगर हम सॉलिड की बात करें तो समटाइम्स सिल्वर बॉटल वेयर मेटालिक लीड्स एंड शो टाइट स्क्रीन इन वन हैज टू पुट द लीड इन हॉट वाटर फॉर समटाइम्स टू ओपन द लीड एंड दिस वुड अलाउ द मेटालिक कवर एक्सपांड, देयर बाय लूजिंग इट अनस्क्रू इजीली. या प्रैक्टिकल में भी कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर थर्मल एक्सपांशंस. 9th-10th में ऐसा रीज़न आता था कि भाई जो भी रेलवे ट्रैक है तो वो रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ी गैप रखते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ी गैप रखते हैं. ऐसा आपने 9th-10th में पढ़ा है, ऐसे जस्ट लाइक दिस. रेल की अगर पटरी आपने देखी है तो वो दोनों के बीच में थोड़ी गैप है. उसका रीज़न क्या है कि इन समर टेम्परेचर बिकम्स इंक्रीज, so length of metal becomes increase, linear expansion, it's called linear expansion. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो भी आयन का जो भी पटरी है वो गर्म होगी तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, मीन्स इट्स कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. अगर ये दोनों के बीच में अगर कुछ भी गैप नहीं रखे तो लेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो पटरियाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, मीन्स एक्सीडेंट होने का चांसेस है. And that's why some distance are fixed between two tracks. तो ऐसा रीज़न आप 9-10 में पढ़ चुके हो. सेम यहाँ पर है कि थर्मल एक्सपांशन की अगर बात करें, इन अवर कॉमन एक्सपीरियंस द बॉडी सब्सटेंस एक्सपांड. इन कॉमन एक्सपीरियंस द मोस्ट सब्सटेंस एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग.
If change in temperature of body, so change in its dimensions. So change in its dimensions. Increase in the dimensions of body due to increase in the temperature is called thermal expansion. Different three types of thermal expansions: linear expansion, area expansion, and volume expansion. If the expansion in length, it's called linear expansion. Expansion in area is called area expansion, and the expansions in volume, it's called volume expansion. तो उसके फॉर्मूलाज है डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू ट्वाइस 2 अल्फा डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी. ये वन डायमेंशंस है इसलिए सिर्फ अल्फा. लेंथ के अंदर एरिया एक्सपांशन के अंदर लेंथ भी इंक्रीज होगा और ब्रेथ भी इंक्रीज होगा, तो 2 डायमेंशन है, मीन्स 2 अल्फा. एंड वॉल्यूम के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इंक्रीज होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 अल्फा लिखा है, एंड इट्स कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन. तो ये था लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन. हियर अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट, और उसका यूनिट होगा अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट, और उसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स. Explain linear expansion. Suppose increase in length of substance delta L is directly proportional to original length L. So delta L proportional to L and delta L proportional to delta T. तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T. डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T. अल्फा इज इक्वल टू linear expansion coefficient, linear expansion coefficient, and it depends on types of material and temperature. Unit is Celsius inverse or Kelvin inverse. तो डेल्टा L means change in length, L2 minus L1, final minus initial, and delta T is equal to change in temperature, final minus initial. तो डेल्टा एल की जगह L2 माइनस L1 लिखो, डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 लिखो, और कैलकुलेशंस करो तो आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ये 12th में भी आएगा, ध्यान रखना. अब कौन से मटेरियल वायर का कौन सा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो आपको दिया होगा सम्स के अंदर या जो भी एमसीक्यूज है उसके अंदर. तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं.